بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 55 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت اعتراضات الاشاعرۃ سے لے کر وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ أُمُورٌ تک۔ کرام عزیز، آج کے درس میں پہلا نقطہ جو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کا اشکال حسن و قبح عقلی پر۔ چونکہ حسن و قبح عقلی کے یہ قائل نہیں ہیں، اس سے قبل والے درس میں اشاعرہ کے عقیدے کو رد کیا گیا۔ اب اشاعرہ کا اشکال ہے معتزلہ اور امامیہ کے نظریے پر، جو کہ نظریہ حسن و قبح عقلی ہے۔ نمبر 2، اشاعرہ کے اشکال کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر 3، حسن و قبح کے بارے میں تجرید الاعتقاد کتاب سے جو نظریہ ہے اس نظریے کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں اعتراضات الاشاعرہ، تو اشاعرہ نے اعتراض کیا ہے حسن و قبح عقلی پر۔ اشکال اس طرح صغرا و کبرا کی صورت میں، بأن القبیح لو کان عقلیا لما اختلف حکمہ ولما جاز زوالہ۔ اگر قبیح عقلی ہوتا، یعنی عقل مستقلاً درک کرتی کسی فعل کے برے ہونے کو، تو پھر عقل کا حکم مختلف نہ ہوتا اور حکم کا عقل کا حکم قابل زوال نہ ہوتا۔ وَالتَّالِي باطل، تالی یہ ہے، جبکہ تالی باطل ہے، یعنی حکم کا عقل حکم مختلف بھی ہے اور قابل زوال بھی ہے۔ جب ایسے ہے تو فل مقدم مثلہ، مقدم بھی تالی کی مانند باطل ہے، یعنی بس قبیح حسن و قبح عقلی نہیں ہے۔ یہ صغرا و کبرا کیا سے منطقی کی صورت میں بیان کیا انہوں نے۔ اب وضاحت بیان شرطیہ، شرطیہ کی بیان یہ ہے کہ شرطیہ، طلاب کرام عزیز آپ کو پتا ہے کہ منطق میں ایک حملیہ قضیہ ہوتا ہے شرطیہ۔ شرطیہ کے پھر اطراف ہوتے ہیں مقدم، تالی اور ان کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے۔ ان الاحکام ضروریت لا يمكن تغییرها، بدیہی احکام جو ہیں اور واجب احکام جو بدیہی ہیں ان کو تغیر و تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ ایک، وَأَنَّ قَوْنَ الْكُلِّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، یہ کہ کل بڑا ہوتا ہے جز سے، یہ بھی بدیہی ہے۔ لا يمكن زوال حکم بھی، اس کے حکم کو بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں، بے سبب، کسی بھی وجہ سے تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ بس احکام بدیہی بھی قابل تغیر نہیں، جو یہ مثالیں، یہ شرطیہ مقدم۔ بیان انتفاع تالی، اور انہوں نے کہا کہ بس تالی منتفی ہے، باطل ہے، اس کا بیان کہ ان الکذب یستحسن اذا اشتمل علی مصلحۃ، جھوٹ کبھی کبھی حسن ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر عمومی فائدہ پایا جاتا ہو، مصلحت پائی جاتی ہو۔ ولو کان قبح بدیہا لما زال، اگر اس کا اشارہ فرماتا اگر جھوٹ کا قبح بدیہی ہوتا، عقلی ہوتا، تو لما زال، یہ مصلحت ہوتی یا مصلحت نہ ہوتی، اس کا یہ قبح زائل نہ ہوتا، جبکہ زائل ہے، ابھی حسن ہے، لہذا حسن کو بھی عقلی ہے ہی نہیں۔ والجواب المنع من زوالہ، جواب یہ ہے ان کے اعتراض کا، اشکال کا، کہ ہم یہ آپ جو زوال والی بات کر رہے ہیں، تغیر والی بات کر رہے ہیں کہ احکام کے اندر، احکام عقلی کے اندر تغیر و زوال آتا ہے، یہ فإن ھذا الکذب حسن، یہ جس کو آپ کبھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کو، یہ جھوٹ اچھا ہے، حسن ہے، لیکن لا باعتبار کونہ کذبا۔ اب دو لحاظ ہیں، ایک جھوٹ کو کذب بما ہو کذب دیکھ رہے ہیں، ایک کذب بما ہی مصلحت عامہ دیکھ رہے ہیں، دو لحاظ ہیں۔ سوال ہے کہ جس لحاظ سے آپ دیکھیں گے اسی لحاظ سے اس کے اوپر حکم آئے گا۔ کذب اچھا ہے، حسن ہے، نہ اس لحاظ سے کہ کذب ہے، جھوٹ ہے، بل بے اعتبار استعمال ہی، اس لحاظ سے کہ یہ جھوٹ مشتمل علی المصلحت ہے، اس میں عمومی فائدہ ہے، لہذا وقوبہ من حیث ہوا کذب لا یزول، کذب بما ہوا کذب کے اندر جو قباحت تھی وہ تو ختم نہیں ہوئی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر
झूठ की निस्बत किज़्ब की बजानिब निस्बत हसन की दी जा रही है, तो किज़्ब की वजह से नहीं दी जा रही, बल्कि मसलहत उमूमी की बिना पर। चूंकि मसलहत उमूमी हसन है, इसलिए चूंकि उस झूठ के साथ मुत्तसिल है, इसलिए झूठ की जानिब भी हसन की निस्बत दी जा रही है। वह यतअय्यन इर्तिकाबुल हसनिल कसीर, और मुअय्यन हो जाता है कि ऐसे अच्छे काम को अंजाम देना, मुर्तकिब होना मुअय्यन है जो ज्यादा हो, जिसमें फायदा ज्यादा हो। वह निश्तमल अला को बिन यसीरन, अगर वो अच्छा काम अपने अंदर रखता हो छोटा सा नुकसान, छोटी सी बुराई, छोटी सी कबाहत। मिसाल देते हैं, कमा अन्न मन तवस्सत अर्जन मकसूबतन यजिब अलैहिल खुरूज अन्हा, जिस तरीके से वो शख्स जो वास्ता बना हो, बीच में आ गया हो, ऐसी जमीन के दरमियान में आ गया हो जो गस्ब की गई हो, तो उसके ऊपर उस जमीन से निकलना वाजिब है। वह इनकान गस्बन, अगरचे वो गस्ब है, यानी खुरूज खुद उसका निकलना भी गस्ब के जुमरे में आएगा, लेकिन उसके लिए निकलना वाजिब है। इस्तेमाल अला अकल ज़रर, अब वहां बाकी रहना बड़ा ज़रर है, बड़ी कबाहत है, और उससे निकलना भी कबाहत है, लेकिन उसमें कम कबाहत है। इला अन हुक्य जवाबुल हुक्मा अन ज़ालिक, यहाँ तक हिकायत किया गया हुक्मा फ़लसफ़ान इलाही का जवाब इसके बारे में। काल, वो कहते हैं काल हुक्म, हुक्मा कहते हैं लिनफ्स नातिकत कुव्वत नज़रियतुन, इंसानी नफ्स के लिए, इंसानी अक्ल के लिए। नफ्स नातिका एक इस्तिलाह है तुलाब इकराम, अक्ल के लिए, अक्ल है, नफ्स नातिका है, रूह भी कहते हैं वगैरह। एक कुव्वत नजरी है, नजरी यानी दर्क की, ताकुल की, तफक्कुर की कुव्वत। वही वो क्या है, तअक्कुल माला यकून मिन अफ़आलिना व इख्तियारिना, वो तसव्वुर करती है ऐसे चीजों को जो हमारे अफ़ाल और इख्तियार में से नहीं है। व कुव्वतुन अमलियतुन, एक उसके अंदर कुव्वत नजरी है, यानी दर्क वाली कुव्वत, समझने वाली, जिसे अक्ल नजरी भी कहा गया है। दूसरी कुव्वत अमली है, वही तअक्कुल मा यकुन मिन अफ़आलिना व इख्तियारिना, उन अफ़आल को तसव्वुर करती है ये नफ्स नातिका जो हमारे अफ़आल हैं, जो हमारे इख्तियार में हैं। वल अक्ल नजरी लदी यहकुम बिल बदिहियात, अक्ल नजरी, यह कुव्वत नजरी कह लें, वो है जो बदिहियात के बारे में हुक्म लगाती है। वो बदियात ये में कौनिल कुल्ले अअज़म ला यहकुम बिहुस्नि शैइन मिनल अफ़आल वला बिक़ुबिही, अक्ल नजरी कभी भी हुक्म नहीं लगाती, यानी अशिया के किसी भी चीज के अफ़ाल में से किसी भी चीज के अच्छे होने के बारे में या कभी होने के बारे में हुक्म नहीं लगाती। वो दर्क करती है, वो समझती है, वो तअक्कुल करती है। लिहाजा दर्क है अक्ल का काम, हुक्म लगाना नहीं। वह इन्नमा यहकुमु, हाँ हुक्म लगाती है बिज़ालिका, किसी चीज के अच्छे होने के बारे में, अल अक्लुल अमली, हुक्म अक्ल अमल लगाती। जब अक्ल नजरी दर्क के लिए अच्छा है, तो अक्ल अमली आके हुक्म लगाते अच्छे को अंजाम देना चाहिए। अक्ल नजरी जब दर्क किया कि ये फेल बुरा है, ये चीज बुरी है, तो अक्ल अमली आके हुक्म लगाती है कि इसको तर्क करना जरूरी है। अल्लज़ी युदब्बिरु मसालिह नौइल इंसान व अशकासी, वो अक्ल अमली जो चलाती है इंसान, नौ इंसानी की मसलहतों को और अशखास इंसानी की मसलहतों को, फायदों को देखती है। वलिज़ालिक, इसी वजह से रुब्बमा यहकुम बिहुस्नि फ़िअलिन व क़ुबी बिहस्बि मसलहतिन, इसी वजह से अक्ल अमली बसा औकात हुक्म लगाती किसी फेल के अच्छे होने पर और किसी फेल के बुरे होने पर, लेकिन दो मसलहतों की बिना पर। कमा यक़ूलून फ़िल किज़्बिल मुश्तमिल अल मसलहतिल आम्मा, जिस तरीके से झूठ के बारे में कहा जाता है कि उसमें उमूमी मसलहत है, इसलिए झूठ अच्छा है। ला इज़ा खला अनहुमा, बाज़ किताब में अनहा है, बाज़ में अनहुमा, ना कि वो जो दोनों मसलहतों से खाली हो, उसके बारे में हुक्म नहीं। वह युसम्मून मा यक़्तज़िल अक़्लुल अमली मिनल अहकामिल मज़कूरति, और इसका नाम उन्होंने रखा है, नाम रखा है उन चीज़ों का जिसको अक्ल अमली दर्क करती है, तकाजा करती है, उनका वो अहकाम नाम रखे हैं जो जिक्र किए। इज़ा लम यकुन मज़कूरन फ़ी शरीयत मिन शराइ बि अहकाम शराइ गैर मकतूब, लेकिन ये तब है जब वो अहकाम जिक्र ना किए गए हों किसी भी ऐसी शरीयत के बारे में जो शरीयत शरई अहकाम को बयान करने वाली हो और उसके लिखे गए अहकाम ना हो। वही अहकाम साबिततु फ़ी कुल्लि शराइ, और वो अहकाम जो हर शरीयत में मौजूद हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तदवीन की जरूरत नहीं। कल हुक्म लगा बिअन्नल इंसाफ वल एहसान हसन, हर शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम अलैहिस्सलाम तक आप फर्ज कर लें, इंसाफ, एहसान, ये अच्छे काम हैं।
युसम्मून मा यंतिकु बि शरीयत मिन अश-शराइ, और नाम रखा है उसका जिसके बारे में शरीयत हुक्म देती है, नुत्क करती है, वल अहकामुल मुख्तसद बिशरअ दुन उखरा, वो अहकाम जो एक शरीयत में दूसरे में नहीं, बे अहकाम शरअल मकतूबत, उनका नाम रखा गया है वो अहकाम जो शरीयत में लिखे गए हैं। कशफुल फवाइद फी शरअ क़वाइद लक़ाइद सफ़ा 64 से 65 तक। दाल गालिबन ये आखिरी नजरिया हो जाएगा बुजुर्गान का। कालिफ तजरीद में फरमाते हैं वह हुमा अकलियान है कि हुस्न को अकली हैं। दलील लिल इल्म हुस्न एहसान वक़ूब ज़ुल्म मिन गैर शरइन, चूंकि इंसान को इल्म है एहसान के अच्छे होने का, कोब जुल्म के कभी होने का, उसके बारे में शरीयत भी नहीं है, शरीयत में हुक्म नहीं किया। लेकिन शरीयत के हुक्म के बगैर जब दर्क करिए तो यानी अक्ल के पास है, ये बात अकली है। दूसरी दलील वले इंतिफा इमा मुतलकन लौ सबता शरन, अगर हुस्नों को भी अकली मुंतफी हो जाएंगे अगर ये शरई लिहाज से साबित हो जाएंगे, यानी अगर हुस्नों को भी शरई होंगे, अगर हुस्नों को भी अकली मुंतफी होगी तो हुस्न को भी शरई भी साबित नहीं होगा। वला जाज़ ताकुस भी जायज़ है, बरअक्स भी जायज़ है। क़ाल शारिउल अल्लामतो फी तौज़ी, इसकी वज़ाहत में शायर अल्लामा हिली फरमाते हैं व तक़रीरुल अव्वले, पहले की वज़ाहत यह है कि बिअन्नहुमा लौ सबता शरअन लम यसबुता, कि अगर हुस्न को वो शरई साबित हो जाए यानी अकली ना तस्लीम करें तो लम यसबुता ला शरअन वला क़लन, ना अकली तौर पे साबित होंगे ना शरई तौर पे साबित होंगे। ताली बातिलुन इजमान, लेकिन ताली बातिल यानी शरई अकली साबित है, फल मुकद्दम मिसलहू, बस मुकद्दम भी इसी तरह ही है कि बिल्कुल साबित है। बयान ये है कि इन्नहु या अन्नहु लौ लम नअलम हुस्न अल अशयाए व कुबहा अक़लन, जब हम नहीं जानते अशिया के अच्छे होने को, अशिया के बुरे होने को अकली लिहाज से, तो लम नहकुम बिकुबिल किज़्ब, तो हम फिर क्यों लगाते हैं झूठ के बुरे होने के बारे में हुक्म? हमें कोई कहता भी नहीं, ना नबी ना रसूल ना शरीयत, तो फिर हम क्यों कहते हैं झूठ को? फजाज वक़ूहु मिन अल्लाह ताला ज़ालिक उलुवन कबीरा, तो फिर ये भी एहतमाल पाया जाता है कि हो सकता है खुदा भी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ बोले जब अकली नहीं है। तो फ़ैज़ा अख़बरना फ़ी शैइन, जब हमें खुदा ने बताया किसी चीज़ के बारे में कि अन्नहु कबीर के बुरी है, लम नज्म को भी हम उसके बुरे होने पर यकीन नहीं ना रखें। वइज़ा अख़बरना फ़ी शैइन अन्नहु हसनुन, और अगर खुदा किसी बारे के बारे में हमें बताए कि ये चीज़ अच्छी है, लम नज्म बिहुस्निही, हम उसके अच्छे होने के बारे में यकीन नहीं पैदा कर सकते। क्यों? लितजवीज़ किज़्ब, क्योंकि मुमकिन है कि बताने वाला जो बता रहा है खुदा, शारे, नबी, इमाम, नऊज़ बिल्लाह में झूठ बोल रहा हो ये, लेकिन चूंकि वो झूठ नहीं बोल रहे लिहाजा पहले जुल्म की कबाहत अकली लिहाज से साबित है, तब हम इनके अंबिया के सच्चे होने को मानते हैं। वह तकरीर सानी, दूसरे मुकदमे की वजाहत यह है तबीन के बयान यजूज़ अन यकून उममुन अज़ीमतुन यअतक़िदून हुस्न मदह मिन मन असाअ इलैहिम, मुमकिन है कि बड़ी बड़ी उम्मतें हों जो अकीदा रखती हों ऐसे शख्स की मिदहत के अच्छे होने के बारे में जो उनके साथ बुराई करके गया हो, जो उनके साथ नारवा सलूक चला हो। वह ज़म्म मन अहसन इलैहिम, और उसकी मजम्मत करते हों जो जिसने उनके साथ एहसान किया हो, अच्छाई की हो, हिदायत की हो। कमा हासिल लना एतकाद वक्त से ज़ालिका, और जिस तरह हमारे लिए भी इसके बरक्स एतकाद हासिल हो जाता। शरह तजरीद एतकाद सफ़ा नंबर 186 पे भी बात मौजूद है। तुल्लाब इकराम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा, अगर हम सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर 1 बनेगा कि अशायरा का कौन सा एतराज़ है हुस्न को अकली पर, और उसका जवाब क्या है, उस जवाब को बयान फरमाएं। दूसरा सवाल यह होगा कि तजरीद एतकाद किताब में हुस्न को अकली को किस तरह बयान किया गया है, अदिल्ला के साथ उनको इख्तिसार के साथ बयान करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।